Hello friends, welcome all of you in our channel Gyan Vigyan Brahm Gyan. Today we are discussing visual guide to grammar and punctuations. First, we learn about grammar. Grammar, व्याकरण. What is a grammar? व्याकरण क्या है? The answer is about that. What is grammar? We use word when we talk to and write to each other. हम सब शब्दों का प्रयोग करते हैं जब हम बातचीत करते हैं अथवा लिखते हैं each other एक दूसरे के साथ. There are thousands of different words in any language. किसी भी भाषा में हजारों शब्द होते हैं and they all have their one meaning. और उन सारे शब्दों का अपना एक अर्थ होता है. Grammar is the way we put these words together so that they make sense. ग्रामर एक तरीका है, एक रास्ता है जिससे कि हम इन शब्दों को एक साथ एक सिस्टम से व्यवस्थित करते हैं जिससे उनमें एक समझ, ज्ञान, विचार का मूल जो भाव होता है प्रकट होता है. Word scattered around on their one don't meaning very much. बहुत सारे वर्ड इधर उधर फैले रहे, उनका कोई अपना एक अर्थ नहीं होता. Like that you can see here, he used to zoom the planet up and a rocket into distant space. The alien traveled. These all type of word not make any sense. Sentence is when made by the grammatical things. Like that you can see next sentence who is written in the grammatical. Words are like piece of jigsaw. शब्द जो होते हैं वो जिक्सा के टुकड़े की तरह होते हैं. We need to fit them together. हमें जरूरत पड़ती है उनको एक साथ जोड़ने की properly, उचित तरीके से. To make meaning, उनका अर्थ को बनाने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए. Like that the huge rocket zoomed up into space. एक विशाल रॉकेट zoom up ऊपर गया आकाश में. An alien traveled, और एक एलियन परदेशी आदमी travel to a distant planet, दूर ग्रह पर यात्रा करता है. What is a punctuation? Punctuations अर्थात जो विराम चिन्ह वगैरह होते हैं ग्रामर में यूज किए जाते हैं. When speaking, जब हम बात करते हैं, you might pause, आप उसमें रुक सकते हैं. When you are finished, जब आप उसे पूरा करते हैं. Saying something, कुछ कहते हैं, जब वो पूरा हो जाता है तो आप उसे रुक जाते हैं. और अथवा you might shout if you are angry, अथवा आप चिल्लाते हैं जब आप क्रोधित होते हैं. When you write, जब आप लिखते हैं, you use punctuations, जब आप किसी चीज को लिखते हैं तो इसमें आप जो है punctuations का जो चिन्ह होते हैं, निशान होते हैं, उनका उपयोग करते हैं. To make your meaning clear, अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए. Punctuations show the reader when to pause. Punctuations बताते हैं पाठक को कि कब रुकना है. When something is question, और कब प्रश्न है. और when something is shouted, और कब चिल्लाया जा रहा है. With no punctuations, a sentence is hard to understand. बिना punctuation के कोई भी वाक्य समझना बहुत कठिन होता है. Like that you can see here next sentence. The toy store was amazing. There were shelves packed with all kind of exciting things. Wooden train, action figure, brightly colored kite, and lot of more. We need to add punctuations to make the meaning clear. हमें जरूरत पड़ती है punctuations को वहां पर उपयोग करने का, जोड़ने का सेंटेंस के मध्य में, जिससे कि उसका जो अर्थ है वाक्य का अच्छी तरह से स्पष्ट हो सके. Like that the toy store was amazing. खिलौने का जो स्टोर है, दुकान है, बहुत ही अद्भुत है. There were shelves packed, बहुत सारे वहां पे जो है अलमारियां भरी हैं. With all kind of exciting things, बहुत सारी जो रोमांचक वस्तुओं से, हर प्रकार की. वुडन ट्रेन, लकड़ी की
train, action figure चित्र, brightly colored kites, रंगीन चमकती हुई पतंगे, and lots more, और बहुत सारी वस्तुएं. Sometimes कभी कभी punctuations can change the meaning of the sentence. कभी कभी जो punctuations होता है वह वाक्य के अर्थ को बदल देता है. Like that you can see here, we found gold coin and jewel. Here is we found, हमने पाया, gold coin and jewels. Like next sentence where you use punctuations, we found gold, हमने पाया, सोने को पाया, coins and jewels, जो कामा लग गया बीच बीच में यहाँ बताता है, वहां पे हम रुक जाते हैं जिससे उसका भाव और ही खिलकर सामने आता है. Preposition: The astronaut flew to the moon in a rocket. Astronaut flew, उड़ा, to the moon, चंद्रमा के लिए, in a rocket, rocket में. In the sentence, to and in is used like preposition. A green and yellow parrot. Here is a parrot, but adjective जो विशेषण बताता है कि ग्रीन और येलो है, हरा और पीला पैरेट है, तोता है. वर्ब लाइक ए क्रिया, रोवर, हंट, धारना, शिकार करना. कंजक्शन जो उसका संबंध है. हेज, विजार्ड, वह जादू है, जादूगर है. नाउन, संज्ञा है. मोस्ट एनिमल व्हेन लक क्यूट व्हेन दे आर यंग. अधिकतर जानवर जब वह छोटे होते हैं तो बहुत सुंदर दिखते हैं. प्रोनाउंस सर्वनाम. माई सिस्टर वांट टू बी ए बेट. मेरी बहन जो है एक बेट चाहती है, पालतू जानवर चाहती है. मॉम बाउट हर ए किटन. माँ ने उसके लिए एक किटन, बिल्ली का बच्चा लिया. इधर जो यूज किया माई एंड हर, दैट इज ए प्रोनाउंस. और स्ट्रिंग, हियर इज यूज लाइक द प्रोनाउन. इंटरजेक्शंस, एडवर्ब. आई कैन रन फास्ट. मैं दौड़ सकता हूँ लेकिन तेजी से दौड़ सकता हूँ. पार्ट ऑफ स्पीच. डिटरमिनर्स, टेंस. लुक एट द पेंगुइन्स. पेंगुइन्स को देखो. द इज डिटरमिनर्स. टेंस, इट स्नोड लास्ट नाइट. अर्थात पिछली रात को बर्फ गिरा था. नाउन. द थिंग्स, एनिमल एंड पीपल इन द वर्ल्ड अराउंड अस ऑल हैव नेम. हमारे चारों तरफ जो सारी वस्तुएं हैं संसार में दिखाई देती हैं, जानवर, लोग, उन सब के अपने एक नाम होते हैं. दिस नेम आर कॉल्ड नाउन. इसी नाम को हम नाउन की संज्ञा के रूप में जानते हैं. लाइक दैट ट्री हैव ए पार्ट्स, लीफ, ब्रांच, दैट इज नेम. टाइगर, स्ट्रिप्स, फर. टाइगर बाघ, स्ट्रिप्स है इसकी और फर्स है. कास्टल किला, विंडो खिड़की, टावर्स. हेयर इज ए नाम, नेम, दैट इज ए नाउन. ट्रैक्टर, कैब, व्हील्स, व्हील्स चक्के, कैब्स बैठने के लिए स्थान, केबिन, ट्रैक्टर है, नाम है. डायनासोर, टेल्स, क्लाउज. डायनासोर भी नाम है, टेल्स पूंछ का नाम है, एंड क्लाउज पंजे के लिए. रिमेंबर, याद रखें, एवरीथिंग हैज ए नेम. हर वस्तु का एक नाम है. एंड एवरी नेम इज ए नाउन. और हर जो नाम है वह एक संज्ञा है. फ्रॉम अ माउस टू अ माउंटेन. चूहे से लेकर पर्वत तक. फ्रॉम कास्टल टू क्लाउन. किले से लेकर पंजे तक. द नाउन ऑन दीज टू पेजेस आर कॉल्ड कॉमन नाउन. अभी जो हम अगले पेज में पढ़ेंगे वो कॉमन नाउन्स हैं. बिकॉज दे डोंट टॉक अबाउट वन स्पेसिफिक थिंग और पर्सन. क्योंकि वे जो है किसी विशेष वस्तु अथवा किसी वस्तु विशेष व्यक्ति के बारे में नहीं बतलाते. यू कैन यूज द नाउन. आप नाउन का प्रयोग कर सकते हैं ट्री, वृक्ष के लिए. अबाउट एनी ट्री, किसी भी वृक्ष के लिए. एंड द नाउन ब्रदर, अबाउट एनी ब्रदर. और भाई का, किसी भी भाई के लिए. दिस इज ए माई ब्रदर, यह मेरा भाई है. दैट इज ए कॉमन नाउन. शी इज ए टीचर, वह एक टीचर है, कॉमन नाउन है. ही इज सिंगर, वह एक सिंगर है, कॉमन नाउन है. आई एम चैंपियन, दैट इज ए कॉमन नाउन. देयर आर आल्सो नाउन फॉर थिंग्स फॉर आर एंड रियल बट ओनली एग्जिस्ट इन आवर इमेजिनेशन.
देयर आर, ऐसा बहुत सा वस्तु होती हैं जो वास्तव में नहीं होती हैं लेकिन फिर भी हमारी कल्पनाओं में होती हैं। जैसे ही विजार्ड, वह जादूगर है। हियर इज ड्रैगन, यहाँ ड्रैगन है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ एन एक्चुअल पर्सन। प्रॉपर नाउन जो होता है एक वास्तविक आदमी का नाम होता है, और प्लेस अथवा स्थान का। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन का हमेशा जो प्रारंभ होता है वो कैपिटल लेटर से होता है। सम प्रॉपर नाउन आर द नेम ऑफ पीपल। कुछ प्रॉपर नाउन्स होते हैं जैसे नाम होते हैं लोगों के, एमिली, जैक, सिंडी, एडम्स। सम प्रॉपर नाउन आर नेम ऑफ कंट्री। कुछ प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं वह किसी देश के नाम होते हैं, सिटी शहर के नाम, नगर के नाम हो सकते हैं, लाइक फ्रांस, न्यूयॉर्क सिटी। द नेम ऑफ मंथ्स एंड डे ऑफ द वीक आर आल्सो प्रॉपर नाउन। महीनों के नाम, सप्ताह के नाम भी जो है प्रॉपर नाउन्स ही हैं। वी गो ऑन वैकेशन इन अगस्त। हम जो है अगस्त में छुट्टी पर जाते हैं। वी स्टार्ट स्कूल ऑन मंडे। हम जो है विद्यालय सोमवार से प्रारंभ करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन आर नेम फॉर थिंग्स यू कांट सी। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग वहां किया जाता है उन वस्तुओं का नाम है जिसे हम देख नहीं सकते, हियर सुन नहीं सकते, या टच छू नहीं सकते, लाइक हेल्थ, हंगर। सम अब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फीलिंग। कुछ अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती हैं वो फीलिंग होते हैं, भाव होते हैं, लाइक दैट, हैप्पीनेस, प्रसन्नता, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। सम अब्स्ट्रैक्ट नाउन आर आइडिया। कुछ अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं आइडिया होते हैं, विचार, लाइक दैट, स्पीड, तीव्रता, फेम, प्रसिद्धि। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, सिंगुलर अर्थात एक वचन, प्लूरल अर्थात बहुवचन। ए सिंगुलर नाउन एक वचन का संज्ञा होता है, टॉक अबाउट जस्ट वन थिंग्स, वह केवल एक वस्तु के बारे में बात करता है। अ प्लूरल नाउन इज यूज्ड फॉर मोर देन वन थिंग। बहुवचन का प्रयोग, प्लूरल नाउन का प्रयोग एक से अधिक लोगों के लिए या वस्तुओं के लिए किया जाता है। विथ मोस्ट नाउन्स वी ऐड यस। अधिकतर हम नाउन्स में जो है यस को जोड़ते हैं टू द एंड ऑफ द वर्ड, शब्द के अंत में, टू मेक द प्लूरल, उनको प्लूरल बनाने के लिए। अ ट्रक, एक ट्रक, टू ट्रक्स, सिंगुलर, एक ट्रक है, टू ट्रक अर्थात दो ट्रक हैं। ए डॉग्स, एक कुत्ता है, थ्री डॉग्स, तीन कुत्ते हैं। ए बैलून, एक गुब्बारा है, एक वचन है, लॉट्स ऑफ बैलून, बहुत सारे गुब्बारे हैं अर्थात बहुवचन है, प्लूरल है। अ बर्ड, एक पक्षी, मैनी बर्ड्स, बहुत सारे पक्षी, दैट इज ए सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। नाउन दैट हैव ए सिंगुलर एंड प्लूरल आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जो संज्ञा सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन होता है उसे हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। दिस मीन, इसका मतलब होता है वी कैन काउंट देम, हम उनको गिन सकते हैं। सम नाउन्स डोंट हैव प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें प्लूरल नहीं होता। दीज आर कॉल्ड अनकाउंटेड नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। जिन बहुवचन में जिन नाउन जो प्लूरल होता है जिसको हम गिनती नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं अनकाउंटेबल। वन पेंसिल, टू पेंसिल, थ्री पेंसिल, वन चेरी फॉर यू एंड टू चेरी फॉर मी। एक चेरी आपके लिए है और दो मेरे लिए है। दीज आर अनकाउंटेबल नाउन बिकॉज यू कैन नॉट काउंट देम। यह जो है अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि आप इनकी गणना नहीं कर सकते। सम फर्नीचर, कुछ फर्नीचर है। सम मिल्क, कुछ दूध है। लॉट्स ऑफ मनी, बहुत अधिक रुपया है। सम लाउड म्यूजिक, कुछ ज्यादा अधिक संगीत। टॉप टिप, अनकाउंटेबल नाउन डोंट हैव अ प्लूरल। जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसका प्लूरल नहीं होता, बहुवचन नहीं होता। वी कांट से, हम नहीं कर सकते, टू फर्नीचर्स बिकॉज टू इज ऑलवेज यूज इन दिस सेंटेंस आर टू फर्नीचर इज राइट, not two furnitures, or lots of money. Money is not used because lots is always are first use. They can say lot of money. Compound noun. Compound noun be something put words together
टू मेक न्यू नाउन। हम कभी कभी एक दो वर्ड को साथ में जोड़ते हैं, जो दो वर्डों को जोड़कर एक शब्द बनता है उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। दिस नाउन आर कॉल्ड कंपाउंड नाउन। लाइक दैट, रेनकोट, स्टारफिश, स्टार प्लस फिश, फिश स्टारफिश, रैन प्लस कोट रेनकोट, कप प्लस केक कप केक, सन प्लस राइज सनराइज, हैंड प्लस बैग हैंडबैग, टूथ प्लस पेस्ट टूथ पेस्ट, टूथ प्लस ब्रश टूथब्रश। कलेक्टिव नाउन। सम नाउन रेफर टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल। कुछ नाउन जो संज्ञाएं होती हैं वह किसी जानवर के समूह को व्यक्त करती हैं। पीपल आर थिंग्स, लोगों को अथवा वस्तुओं के समूह के बारे में अभिव्यक्त करता है। दे आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, उनको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अ फ्लॉक्स ऑफ गीज, गीज बत्तखों का समूह। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट, हाथियों का समूह। अ टीम ऑफ फील्ड हॉकी प्लेयर, एक खिलाड़ी टीम खिलाड़ियों का समूह। ए रेंज ऑफ माउंटेन, एक पर्वतों की श्रृंखला। अ फ्लीट ऑफ बोट्स, नाव की श्रृंखला, नाव का समूह। अ स्कूल ऑफ फिश, बहुत सारी मछलियां। वर्ब, क्रिया। वर्ब, वर्ब्स टेल यू व्हाट थिंग्स, क्रिया हमें बताती है कि क्या वस्तु है। आर नाउन, अथवा संज्ञा के बारे में। डू, करते हैं। दे आर समटाइम्स कॉल्ड डूइंग वर्ड, कभी कभी हम उसे करने वाला शब्द कहते हैं। लुक एट व्हाट दिस पीपल एनिमल एंड थिंग्स कैन डू, आप इन चित्रों में देखिए और समझे कि लोग, जानवर और वस्तुएं कर सकती हैं, क्या करती हैं। लाइक, वॉल्क, चलना। रोवर, दहाड़ना। हंट, शिकार करना। टर्न, घूमना। डांस, नाचना। स्पिन, मीन से घूमना। फ्लाई, उड़ना। जूम, आवाज करना। टेक ऑफ, उतरना। पॉप, बैंग, बीज। लूज, ढीला। प्ले, खेलना। विन, क्लाइम, चढ़ना। स्विंग, घूमना। बैलेंस, स्विंग, झूलना। बैलेंस, संतुलन। हेयर आर सम नाउन्स, यहाँ पर कुछ संज्ञा दी गई है विद वर्ब एडेड, जिसमें वर्ब को जोड़ा गया है। टू शो व्हाट इज नाउन इज डूइंग, जिससे पता चलता है कि प्रत्येक जो नाउन है, संज्ञा है, वह क्या कर रहा है। क्रोकोडाइल हंट्स, मगरमच्छ जो है शिकार करते हैं। एन आइस स्टेकर, एक आइस स्टेकर जो होता है स्पिन से राउंड एंड राउंड, वो बार बार गोल गोल घूमती है। आउल्स फ्लाई, उल्लू उड़ते हैं। आई स्कूटर विज बाई, और स्कूटर एक विज की आवाज करके चलता है। द जिम्नास्टिक बैलेंस, जिम्नास्ट जो है संतुलित करता है अपने को। रिमेम्बर, याद रखें। अ नाउन ऑन इट्स वन इज जस्ट अ थिंग्स, नाउन अपने आप में एक वस्तु है। अ वर्ब मैक्स इट्स रन, वर्ब उसे दौड़ाता है। एंड डांस एंड सिंग्स, उसे नचाता और गाता है। वर्ब्स एंड सब्जेक्ट, क्रिया और विषय। वर्ब्स डिस्क्राइब एक्शन सच एज ए रन, जंप एंड प्ले, क्रियाएं हमें बताती हैं एक्शन के बारे में, कर्म के बारे में। लाइक दैट, रन, दौड़ना। जंप, कूदना। एंड प्ले, खेलना। द पर्सन और थिंग्स, वस्तु अथवा व्यक्ति। दैट डज द एक्शन, जो कार्य को करता है। ऑफ द वर्ब, क्रिया, क्रिया का। इज द सब्जेक्ट, वहाँ सब्जेक्ट होता है, वहाँ विषय होता है। द सब्जेक्ट ऑलवेज कम्स बिफोर द वर्ब, सब्जेक्ट हमेशा जो होता है वो क्रिया के बाद उपयोग किया जाता है। लाइक दैट, इन शॉर्ट टाइप ऑफ सेंटेंस यू कैन सी एंड अंडरस्टैंड। द एथलेट्स जम्प्स, एथलेट्स जो है कूदता है। द क्लाउन जगल्स, क्लाउन्स जो होता है वो जगल्स, अर्थात जोकर जो है वो गेंदों को घुमा रहा है। द बटरफ्लाई लैंड, बटरफ्लाई तितली जो है लैंड कर रही है, उतर रही है। द बोट सेल्स, नाव जो है चल रही है, तैर रही है। द रैन फॉल्स, बारिश हो रही। द स्टार ट्विंकल, तारे चमक रहे हैं, चमकते हैं। समटाइम्स, कभी कभी। द वर्ब हैज चेंज अ लिटिल टू मैच द सब्जेक्ट, कभी कभी थोड़ा क्रिया में परिवर्तन किया जाता है, हो जाता है सब्जेक्ट के साथ अपना संबंध जोड़ने के लिए। वी एड यस और ईएस, हम जो है यस अथवा ईएस को जोड़ते हैं टू द एंड ऑफ द वर्ब,
क्रिया के अंत में। इफ द सब्जेक्ट एज ए सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगल है, एक है, बहुवचन मतलब एक वचन है, थिंग्स दैट यू कैन कॉल ही सी आर इट, जिसे आप ही सी अथवा इट कह सकते हैं। ऑल डॉग्स ब्रैक्स, ऑल डॉग्स ब्रैक्स माने सभी कुत्ते ब्रैक्स करते हैं, भौंकते हैं। द डॉग्स ब्रैक्स ए लॉट, ही ब्रैक्स ए लॉट, कुत्ते बहुत ज्यादा भौंकते हैं। ही ब्रैक्स ए लॉट, वह ज्यादा भौंकता है। ट्रेन्स गो फास्ट, ट्रेन बहुत तेज चलती है। दिस ट्रेन गोज स्लोली, यह ट्रेन धीरे चलती है। इट्स गोज स्लोली, यह धीरे चलती है। सम वर्ब्स चेंज इन डिफरेंट वे टू मैच द सब्जेक्ट, कुछ जो है चेंज जो है समय के साथ और वाक्य के साथ बदल देते हैं अपने आप को। दिस कार इज रेड, यह कार लाल है। दीज कार आर रेड, ये सारी कारें जो है लाल है। इज हियर इज ए सिंगुलर, एक है। आर इज ए प्लूरल, कई है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट अर्थात कर्ता एंड ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म, कर्ता और कर्म। द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, क्रिया का जो सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, कम्स बिफोर द वर्ब, वह क्रिया के बाद आता है। इट टेल्स, यह बताता है, यू आपको, हु आर व्हाट डज, कौन है और क्या करता है। द एक्शन ऑफ द वर्ब, क्रिया के कार्य को बताता है। सम वर्ब्स नीड समथिंग, कुछ क्रियाओं को जरूरत पड़ती है, कुछ एल्स आफ्टर, उसके बाद। अदरवाइज द सेंटेंस डजंट मेक सेंस, अन्यथा जो वाक्य होता है वह पूरा अपने अर्थ को नहीं व्यक्त कर पाता। द पर्सन और थिंग्स, आदमी अथवा वस्तु, दैट कम्स आफ्टर द वर्ब, जो क्रिया के बाद आते हैं, इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। द ऑब्जेक्ट टेल यू, वह ऑब्जेक्ट जो होता है, कर्म जो होता है, वह आपको बताता है, टेल यू हु आर व्हाट रिसीव, कौन और क्या प्राप्त करता है। द एक्शन ऑफ द वर्ब, क्रिया के कर्म के बारे में। द डॉग चेज, कुत्ता पीछा करता है। एला सा, एला देखती है, सब्जेक्ट। द डॉग चेज ए बॉल, कुत्ता जो है बाल का पीछा करता है। एला सा ही हर माँ, एला अपनी माँ को देखती है। सम वर्ब डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट, कुछ क्रियाओं को जो है ऑब्जेक्ट कर्म की जरूरत नहीं होती। एंड मेक सेंस वन देयर वन, वह अपने आप अपना अर्थ बना लेते हैं। द टाइगर रोवर्स, बाघ दौड़ता है। फ्लावर्स ग्रो, फूल खिलते हैं। विथ सम वर्ब, कुछ क्रियाओं के साथ, देयर आर अ चॉइस, वहां पे क्रियाओं के साथ देयर आर चॉइस होता है अर्थात पसंद होता है। समटाइम्स दे हैव एन ऑब्जेक्ट, कभी कभी उनके साथ एक ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है। एंड समटाइम्स दे डोंट, समटाइम्स कभी कभी वो नहीं होता। बट द सब्जेक्ट ऑलवेज कम बिफोर द वर्ब, लेकिन हमेशा जो है सब्जेक्ट जो है वह क्रिया के बाद ही आता है। ऑल किटन प्ले, सारी जो बिल्लियां खेलती हैं। सम किटन प्ले कैच, कुछ बिल्लियां जो है कैच करना खेलती हैं। ऑल एनिमल इट्स, सभी जानवर खाते हैं। ओरांगुटैंस इट एप्पल्स, चिंपैंजी जैसा जो जानवर है वो एप्पल खाता है। एप्पल इज ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज ओरांगुटैंस। रिमेंबर द सब्जेक्ट कम फर्स्ट, यहाँ याद रखें कि सब्जेक्ट पहले आता है। द कैट चेजेज द माउस, यहाँ कैट जो है सब्जेक्ट है, चेजेज वो पीछा करती है, द माउस चूहे का। हियर इज सब्जेक्ट कम फर्स्ट विथ, क्रिया से पहले आ गया। अदरवाइज यू गेट द रॉन्ग मीनिंग, अन्यथा आपको गलत अर्थ मिलेगा। रिमेंबर याद रखे, इफ कैट चेज माइस, अगर बिल्ली चूहे का पीछा करती है। आई डू डिक्लेयर, मैं आपको पहले बता देने जा रहा हूँ, कैट आर सब्जेक्ट, कि कैट जो है वहाँ सब्जेक्ट है, करता है। फेयर एंड स्क्वायर, द माइस आर ऑब्जेक्ट, माइक जो है उसका ऑब्जेक्ट है, कर्म है। बाय द वे, इस तरह से। एंड और इफ दे आर फास्ट, अगर वह तेज है, दे विल गेट अवे, उससे भाग जाएगा। द वर्ब बी, द वर्ब बी इजंट लाइक अदर वर्ब, क्रिया जो बी है या दूसरी क्रियाओं की तरह नहीं। इट इज इरेगुलर है, यहाँ असामान्य है। विच मीन्स, इसका मतलब होता है इट हैज इट्स वन रूल्स, इसके अपने स्वयं के नियम होते हैं। इट टेक्स लॉट ऑफ डिफरेंट फॉर्म, यहाँ जो है कई प्रकार के अपने रूप लेता है।
सच एज यम आर एंड इज, लाइक दैट, जैसे यम आर एंड इज है। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। यम हियर इज ए, लाइक द बी, होना है। आर द एलिफेंट इज ह्यूज, हाथी विशाल है। दिस स्नैक्स आर स्कैरी, यहाँ सर्प जोड़े खतरनाक भयावह है। प्लीज बी क्वाइट, शांत रहें। ही इज बीइंग हेल्पफुल, वहाँ बहुत सहायक है। आफ्टर द वर्ब बी, क्रिया के बाद जो बी का उपयोग किया जाता है, वी कैन यूज ए नाउन, हम जो है एक संज्ञा का उपयोग कर सकते। टू से, कहने के लिए, व्हाट समथिंग इज, क्या है, इज है। आर वी कैन यूज एन एडजेक्टिव, अथवा हम एक एडजेक्टिव का उपयोग कर सकते हैं। टू से, कहने के लिए, व्हाट इज, इट इज लाइक, कि वहाँ कैसा है। दिस इज ए टाइगर, यह एक टाइगर है। इट इज ए फायर, वहाँ जो बहुत क्रोधित है। ही इज ए क्लाउन, वह एक जोकर है। ही इज फनी, वह मजाक किया है। वी आर द चैंपियन, हम जो है चैंपियन है। वी आर प्राउड, हमें जो है बहुत अपने आप पे गर्व है। दीज आर राइनोज, यहाँ जो है गैंडे हैं, ये गैंडे हैं। दे आर स्ट्रांग, वे मजबूत हैं। वी कैन ऑल्सो यूज द वर्ब बी टू टॉक अबाउट द पास्ट, हम जो है वर्ब बी का प्रयोग कर सकते हैं पास्ट के बारे में, बीते हुए कल के बारे में। वी यूज द फॉर्म्स वाज एंड वेयर, तब वहां पर हम जो है क्रिया का जो फॉर्म होता है वाज एंड वेयर का प्रयोग करते हैं। लाइक दैट, yesterday was 7, yesterday I was 7, कल मैं जो है 7 साल का हो गया था। टुडे आई एम 8, आज मैं जो है 8 साल का हो रहा हूँ। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, वी वेयर ऑन वैकेशन, हम छुट्टी पर थे। नाउ वी आर बैक होम, अब हम घर वापिस आ गए हैं। प्रोनाउंस, प्रोनाउंस सर्वनाम। Sometimes we don't want to keep repeating the same noun over and over again. कभी कभी ऐसा होता है कि हम वही बार बार जो है संज्ञा का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इंस्टेड भी, इसके बजाय वी कैन यूज प्रोनाउन, हम प्रोनाउन का उपयोग करते हैं, सर्वनाम का उपयोग करते हैं। टू रिप्लेस द नाउन, संज्ञा को बदलने के लिए। फ्रेडी इज फास्ट रनर, फ्रेडी एक जो है व्यक्ति का नाम है और बहुत तेज दौड़ता है। हियर इज यूज इन नेक्स्ट सेंटेंस, the place of Freddy, he, like pronoun, he always wins, वो हमेशा जीतता है। One day, एक दिन, I want to beat Freddy, फ्रेडी के स्थान पे यहाँ पे हिम लगा दिया गया, एक दिन मैं उसे जो है पछाड़ना चाहता हूँ। My sister wants, मेरी बहन चाहती है, to be a pet, एक पालतू जानवर चाहती है। She loves animal, उसे जानवर से प्रेम है। Mom bought her, माँ ने उसके लिए लाया एक किटन, एक बिल्ली के बच्चे को। माई लिटिल ब्रदर, मेरा छोटा भाई। यस हियर बाइक, स्ट्रोफ कामा है, यस जो वो बताता है कि ब्रदर के, भाई के, मेरे छोटे भाई का जो बाइक है इज ब्रोकन, वो टूट गया है। ही इज गोइंग टू फिक्स इट, वो उसे ठीक कर रहा है। आउल्स हंट्स व्हेन दे आर हंग्री, आउल्स उल्लू शिकार करते हैं जब वे भूखे होते हैं। स्मॉल एनिमल ट्राई टू गेट अवे फ्रॉम द, छोटे जानवर जो है उससे बचने का प्रयास करते हैं या उससे दूर जाते हैं। आई, मी एंड यू आर आल्सो प्रोनाउन, आई, मी एंड यू, मैं, तुम, ये जो है सर्वनाम है। वी यूज देम इंस्टेड ऑफ यूजिंग आवर वन नेम, हम इनका उपयोग करते हैं अपने नाम के स्थान पे। आर समवन एल्स, अथवा किसी दूसरे के नाम पर। मे आई हेल्प, मे आई प्लीज हैव अनदर कुकी, क्या हमें कुछ दूसरी कुकी मिल सकती है। कैन यू टीच मी हाउ टू स्केटबोर्ड, क्या आप मुझे जो है सिखा सकते हैं कि कैसे स्केट बोर्ड पर चलते हैं। वर्ड लाइक नथिंग, एवरीथिंग, नोबॉडी एंड समबॉडी, जैसे कि शब्द होते हैं नथिंग, एवरीथिंग, नोबॉडी एंड समबॉडी, आर आल्सो प्रोनाउन, यहाँ भी प्रोनाउन है। देयर आर नथिंग इन केस, इस केस में जो बक्से में कुछ नहीं है। आई वॉन्ट टू इन्वाइट एवरीबॉडी टू माई पार्टी, मैं अपने पार्टी में सभी को बुलाना चाहती हूँ। नोबॉडी आंसर टू द डोर, दरवाजे पर किसी ने आंसर नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया। समबॉडी हैज ईटेन द पिज्जा, किसी ने जो है पिज्जा को खा लिया। आई आर मी,
ऑलवेज यूज आई नॉट मी, हमेशा जो है आई का प्रयोग किया जाता है नॉट मी, ना कि मी का, बिफोर ए वर्ब, क्रिया के पहले। दिस रूल इज द सम वेदर यू आर लैकिंग अबाउट जस्ट योर सेल्फ, इस नियम का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां आप स्वयं कर रहे हैं। आर यू एंड समवन एल्स, अथवा किसी दूसरे के लिए। आई वॉच्ड ए फिल्म आडम एंड आई वॉच्ड ए फिल्म, मैं फिल्म देख रहा, आडम एंड और मैं, वॉच फिल्म और मैंने, अर्थात मैंने एक फिल्म देखा, आदम और मैंने एक फिल्म देखा। आई फाउंड सम ब्यूरिड ट्रेजर, हमने कुछ छुपे हुए खजाने को पाया। एल्सी एंड आई, एल्सिया और मैंने, फाउंड पाया, सम ब्यूरिड ट्रेजर, कुछ जो है ट्रेजर खजाने को, छुपे हुए खजाने को। पीपल्स, लोग, समटाइम्स, कभी कभी से कहते हैं, मी एंड आडम, मी माने मैं और आडम, वॉच्ड ए फिल्म, एक फिल्म को देखा। हवेवर, हालांकि दिस इजंट करेक्ट, यहाँ गलत नहीं है। यू वुडंट नेवर से, आपको ऐसा नहीं कहेंगे। मी वॉच्ड ए फिल्म, कि मैंने फिल्म देखा। यूज मी इन अदर पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, मी का प्रयोग किया जाता है वाक्य में किसी दूसरी रूप से। द बुल्स चार्ज्ड मी, बैल ने मेरा पीछा किया। द बुल्स चार्ज्ड अली एंड मी, बुल्स ने अली और मेरा पीछा किया। आर दोज एप्पल्स फॉर मी, ये सारे सेब जो है मेरे लिए हैं। आर दोज एप्पल फॉर रोजा एंड मी, सारे एप्पल जो हैं और रोजा और मेरे लिए हैं। रिमेम्बर, याद रखें। लिली एंड आई, लिली और मैं, सैल्ड आउट टू सी, समंदर में गए नौका विहार के लिए। व्हाट एन एडवेंचर फॉर लिली एंड मी, कितना हम जो मजा आया एडवेंचर का लिली और मुझे। इट इज ए पोलाइट टू पुट द अदर पर्सन फर्स्ट, इसमें जो है नम्रता होती है, विनम्रता होती है कि पहले दूसरे आदमी का उपयोग करो। से टॉम एंड आई, जैसे कहते हैं टॉम और मैं। आर टॉम एंड मी, टॉम और मैं। पोसेसिव प्रोनाउन, यू कैन यूज, आप प्रयोग कर सकते हैं पोसेसिव प्रोनाउन का। टू से हु समथिंग, किसी के बारे में बताने, बिलोंग टू, किसी संबंधित है। पोसेसिव प्रोनाउन रिप्लेस द नाउन, पोसेसिव प्रोनाउन जो होता है वह नाउन के स्थान पे लगाते हैं। दिस बॉल इज माइन, माई बॉल हियर इज कट, माइन इज लाइक माई। इज दैट बाइक योर्स, क्या यह बाइक आपकी है। टॉम से, टॉम ने कहा, दोज ग्लोज आर हिज, वे ग्लोज जो हैं उसके हैं। आई गिव माई ओल्ड क्लेट्स टू माई सिस्टर, मैंने अपने पुराने क्लेट्स जो थे जूते दे दिए अपने सिस्टर को। सो दे आर हर्ष नाउ, अब वे उसके हो गए हैं। दिस बनाना जार आवर्स, ये केले हमारे हैं। वी विल क्लीन अप आवर मेस एंड देन कैन क्लीन अप देयर, हमने जो है अपने मेस को साफ किया और वे अपने। हेयर आर 6 पोसेसिव प्रोनाउन, यहाँ पर जो है 6 पोसेसिव प्रोनाउन है। माइन, योर्स, हिज, हर, आवर्स, देयर, प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस। We will next video learn about present and past tense. You can first watch carefully this video and understand, and like, subscribe, share for growing your knowledge about that grammar. Thanks for watching. We will discuss next chapter, present and past, in next video. Thank you.